Hello class. Now in Unix we already show some different types of file. For example, /bin, /dev, /password, /dev, /null. So dev is what? It is a device. Now there are two special kinds of files are there, /dev/null and /dev/tty. Now /dev means a device file. It is a one kind of device file. And /dev/null. Null का meaning क्या है? Null means the file size is always 0. If you can upgrade it, if you can store something in it, but at the last the file size is always 0. You can store some output temporarily, some error temporarily in this kind of file. So in that, this kind of file has a 0 size and in that you cannot save the output. आप output ये file में save नहीं कर सकते permanently, but it simply accept the any stream. मतलब कि वो कोई भी इनपुट आप एक्सेप्ट करवाओगे, कोई भी आउटपुट आप एक्सपेक्ट कराओगे तो उसके अंदर वो एज अ टेम्पररी बेस स्टोर करेगा. फाइन. नाउ why it is used? It is specially used in programming. Yes, when we are performing cell programming, at that time it is useful. But it provides some redirecting error message in that. Yes, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे आप कोई भी सेल प्रोग्रामिंग के एरर आए तो उसको डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर सकते हो किसके अंदर? /dev/null के अंदर. यस, that means if you don't want to display some error and on your screen or on your terminal, so you can redirect that error into /dev/null in a temporary purpose. Okay, so /dev/null is used for temporary purpose and it provides some facility for redirecting an error message instead of displaying some error message on the terminal. It cannot display directly your error on your terminal, so you can redirect it. And आप redirect कैसे कर सकते हो? With using greater than sign. Same way the next file is /dev/tty. Yes, tty is a terminal file and it is some special kind of file in Unix system. So what is it? /dev means it is a device file, but in that you can not represent any standard output or standard error. Yes, so it is not the file that represents standard output or standard error. इसके अंदर आप कोई भी output और error को represent नहीं कर सकते हो. It just give you facility to redirect some statement during cell programming or during some cell script. It just provides some facility to redirect some statement in /dev/tty file. It is useful only at the time of you performing cell programming. So this two special kind of file is used when we are performing some cell programming. If some error is occurring, so we can directly redirect in the /dev/null file. And if you perform any type of program and if you can redirect some message, some statement which is not useful during your program, so you can redirect it in /dev/tty file. These two special files are there. Now next one is the pipes. Yes, what is pipes? Yes, pipe sign आपको पता ही है. Yes, pipe sign means what? Yes, यहाँ पे आप देख रहे हो एग्जाम्पल में मैंने दिया है. This is a pipe sign. Pipe sign is also useful for redirecting some output and it perform as an input for some different command. So pipe is used to combine two or more command and the output of one command is act as an input to another command.
Pipe sign is a one kind of redirection. It will transfer your standard output to some other destination. आपका जो output है उसको other destination पे redirect करेगा. That means it will redirect one command's output to the another, and it will perform like or act as an some more. It will perform the output of one command and redirect that output to the another command in as a form of the input. This is the pipe sign. See over here, example command 1, that means एक command मैंने रन किया. फॉर एग्जाम्पल इधर कोई कमांड मैंने रन किया, उसका जो आउटपुट आया वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा. फिर ये जो कमांड हुआ वो एज इनपुट क्या यूज करेगा, इसका आउटपुट. देन इसका जो आउटपुट हुआ वो कौन यूज करेगा, कमांड 3. यस, कौन यूज करेगा, कमांड 3. दैट मीन्स इसका इनपुट क्या होगा, कमांड 2 जो आउटपुट देगा वो कमांड 3 का इनपुट होगा. यस, it just visualize as a temporary connection between 2 or more commands, 2 or more programs and 2 or more process. See over here, example, it is just ls. What is the use of ls? Yes, ls means it will long listing your files and directory. आपके files and directory का list generate करेगी. But if your files and directories are more and it is not showing in a one page, so what you have to do, you can use this more command. So more command से क्या होगा, more command से आप कोई भी फाइल का आउटपुट एक पेज में जो नहीं आ रहा है उसको मल्टीपल पेज वाइज आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए हेल्प करेगा. So over here I can use more, but I cannot directly use this more command. I can use ls, pipe and more. So ls का जो आउटपुट होगा वो मोर कमांड का इनपुट बन जाएगा और मोर उसको पेज वाइज डिस्प्ले करेगा. नाउ सेम वे द अनदर एग्जांपल. द एग्जांपल इज लाइक दैट, इफ आई वांट टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ यूजर्स, इफ आई वांट टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ यूजर्स वर्किंग, कितने यूजर्स मेरे पास अभी करंटली वर्क कर रहे हैं वो देखना है. सो नंबर ऑफ यूजर्स देखने के लिए आपके पास कमांड कौन सा है, यस, नंबर ऑफ यूजर्स देखने के लिए मेरे पास कमांड है हु. कौन सा है, हु. जैसे मैं हु कमांड डालूंगी मेरे पास नंबर ऑफ यूजर्स डिस्प्ले हो जाएंगे, फाइन. बट मुझे वो काउंट करना है, तो काउंट करने के लिए मेरे पास क्या है, WC. पर WC सिर्फ WC लिखोगे दैट मीन्स इट विल काउंट नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ लाइन, नंबर ऑफ वर्ड, एवरीथिंग. बट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज -L ऑप्शन. क्या यूज करना है आपको, -L ऑप्शन. ओके, so it will display the number of lines which is take as a input of who output. who कमांड का जो आउटपुट होगा वो कितने लाइंस में आया वो लाइन डिस्प्ले करेगा. सो एट द एंड हमें क्या आंसर मिलेगा, नंबर ऑफ यूजर्स मिल जाएंगे. यस, क्यों, क्योंकि हु का जो आउटपुट आया वो WC -L ने उसका इनपुट ले लिया. अदरवाइज हमें क्या लिखना पड़ता है, WC -L एंड द over here name of the file, for example file name is A1 like that. but मैंने क्या किया, इनपुट हु का ही ले लिया. हु का जो आउटपुट आया वो मेरा WC -L कमांड का इनपुट बन गया. फाइन ऑल ऑफ यू, समझ में आया. ये पाइप इट इज यूज फॉर रिडायरेक्शन, बट एक कमांड का आउटपुट दूसरे कमांड का इनपुट बन जाता है इसके अंदर जब आप बहुत सारे कमांड यूज करोगे और बीच में पाइप साइन डालोगे तो. फाइन ऑल ऑफ यू, समझ में आया इतना. Next command is T command. So what is the use of T command? T is creating a file. T command आपकी फाइल क्रिएट कर सकता है, but it's not like an cat. cat की तरह नहीं. Yes, it is an external command and you can use T with the pipe sign always. Yes, for example over here like ls -L. ls -L में जब लिखूंगी टर्मिनल पे उसका आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा. मेरी मॉनिटर पे क्या आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा, 7 कॉलम में आपकी फाइल के सारे एट्रीब्यूट डिस्प्ले हो जाएंगे. फाइन. बट इफ आई वांट टू स्टोर दिस आउटपुट इन सम डिफरेंट फाइल, तो मैं कैट की जगह पे क्या यूज कर सकती हूँ, T कमांड. सो वही सी ls -L. ls -L का जो भी आउटपुट आया उसको मुझे फाइल 1 के अंदर स्टोर करना है.
सो मैं क्या यूज करूंगी एट दैट टाइम, आई कैन यूज टी कमांड, यस टी file1। सो ls माइनस एल का जो आउटपुट आया वो मैंने पाइप साइन का यूज करके टी कमांड से file1 के अंदर स्टोर कर दिया। नाउ कैट एंड टी कमांड में डिफरेंस क्या है, यस और आप डिस्प्ले करोगे उसमें डिफरेंस क्या है। सो व्हेन यू आर यूजिंग टी कमांड, सो एट दैट टाइम इट विल नॉट डिस्प्ले योर आउटपुट ऑन अ टर्मिनल, डायरेक्टली आपका जो आउटपुट होगा वो टर्मिनल पे नहीं डिस्प्ले करेगा, बट instead of that it will store the output in a file, and if you want to show the content of that file you can use cat and file1। see over here, so when I use simply ls minus l और प्रेस एंटर तो ls माइनस एल का आउटपुट आपकी मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बट I don't want to display that output on my terminal, but I want to store in some separate file. So at that time I can use this pipe sign, ls minus l का output t command का input बन जाएगा, because I can use pipe sign over here and t file1। That means कि आप enter करोगे तो आपकी फाइल का जो आउटपुट होगा वो आपको टर्मिनल पे डिस्प्ले नहीं करेगा, बट file1 के अंदर स्टोर कर दे रहा है टी कमांड से। टी कमांड से आप फाइल के अंदर आउटपुट स्टोर कर सकते हो, डायरेक्टली टर्मिनल पे डिस्प्ले नहीं कर सकते। बट इफ यू वांट टू डिस्प्ले इट ऑन योर टर्मिनल देन यू कैन यूज द कमांड कैट, एंड जो फाइल मैंने टी कमांड से बनाई है वो कैट के साथ लिखूंगी, तो टी कमांड में जो आउटपुट यहाँ पे स्टोर हुआ है file1 में वो मेरे file1 में दिखेगा व्हेन आई एम यूजिंग कैट। ओके, सो टी कमांड समझ में आया? टी कमांड से मैं कोई भी आउटपुट स्टोर कर सकती हूँ फाइल के अंदर, बट एट दैट टाइम आई कैन नॉट डिस्प्ले ऑन द टर्मिनल, आई कैन स्टोर द आउटपुट इन अ फाइल सिंपली, and if I want to show that output then I can use cat command। okay, now after that pipes and t, the next command is, it's not a command, it's some special characters or special meaning character like backquote। backquote कहाँ पे है पता है? आपकी जो एस्केप की है ना, एस्केप की के नीचे टील की साइन होती है, और वो टील साइन के साथ जो सिंपली एक डैश जैसा सिंगल कोट जैसा आपको दिख रहा है, दैट इज योर बैक कोट, एंड इट इज यूज फॉर कमांड सब्स्टिट्यूशन। कमांड सब्स्टिट्यूशन के लिए बैक कोट यूज होता है। यस, बैक कोट क्या है? इट इज अ स्पेशल मीनिंग इन यूनिक्स। यस, व्हेन शेल एनकाउंटर अ स्ट्रिंग बिटवीन अ बैक कोट्स लाइक CMD मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो। यस, CMD मतलब कोई भी कमांड में अगर बैककोट में लिखूंगी तो इट विल एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर कमांड एंड स्टोर दैट कमांड आउटपुट इनटू योर वेरिएबल। यस, दैट मीन्स इफ यू वांट टू स्टोर सम कमांड आउटपुट इन अ वेरिएबल, एक कमांड का आउटपुट आपको कोई वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है तो आपको वो कमांड बैक कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। इट एग्जीक्यूट रिप्लेस द बैक कोट स्ट्रिंग विद द स्टैंडर्ड आउटपुट। ओके, नाउ दिस बैक कोट इज नॉट अ कोटेशन साइन, ये एक कोटेशन साइन नहीं है, इट इज अ स्पेशल मीनिंग, एंड इफ यू कैन राइट एवरीथिंग एंड टाइप everything between these backsticks, मतलब this back quotes, it will evaluated or executed by the shell before the main command। आपका जो मेन कमांड है उससे पहले ये एग्जीक्यूट कर देगा, और आउटपुट में उसका जो एग्जीक्यूशन हुआ होगा वो आपको पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर करके दिखाएगा। सो व्हाट इज द स्पेशल यूज ऑफ बैक कोट्स? व्हेन यू आर परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन, एनी कमांड, एंड यू नीड that output of the command into some variable, आपको एक वेरिएबल के अंदर वो कमांड का आउटपुट स्टोर करवाना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है a प्लस बी, यस, और उसका आउटपुट मुझे कहाँ पे स्टोर करवाना है? C के अंदर। सो इन दैट a प्लस बी आपको बैककोट्स में लिखना पड़ेगा, तो उसका वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगा? आपका C के अंदर।
fine, this is a backquote and backquote is specially used for command substitution. Now what is a command substitution? command substitution क्या है वो देख लेते हैं. तो command substitution मतलब शेल प्रोग्रामिंग जब आप करोगे तो आपको कोई वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवानी पड़ेगी. ठीक है, तो आप डायरेक्टली वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते. फॉर एग्जाम्पल मुझे डेट डिस्प्ले करनी है. नॉर्मली मुझे डेट डिस्प्ले करनी है तो मैं क्या लिखती हूँ कमांड प्रॉम्प्ट पे डेट एंड देन प्रेस द एंटर. बट मुझे ऐसा चाहिए जैसे कि डेट इज लिखा आना चाहिए फिर डेट आनी चाहिए. तो मैंने क्या किया, डेट नाम का एक वेरिएबल ले लिया. ठीक है, नाउ डेट नाम के वेरिएबल में डेट नाम का कमांड का आउटपुट स्टोर करवाया. सो जो डेट नाम का कमांड है उसको मैंने कैसे लिखा, बैक कोट्स में लिखा. कैसे लिखा, बैक कोट्स में. एंड आई कैन स्टोर दैट आउटपुट इनटू द डेट वेरिएबल. वो बैक कोट्स का जो आउटपुट आएगा, बैक कोट्स के अंदर जो कमांड लिखा है उसका जो आउटपुट आएगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, कहाँ पे स्टोर होगा, डेट नाम के वेरिएबल में. कहाँ पे स्टोर होगा, डेट नाम के वेरिएबल में. सो इट इज बैककोट इज यूज फॉर परफॉर्मिंग एनी कमांड सब्स्टिट्यूशन. आप कोई भी कमांड बैककोट्स के अंदर लिखोगे और उसका वैल्यू आप कोई भी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो. सो ओवर हियर डेट के अंदर करंट डेट स्टोर हो गई. ठीक है, देन आई कैन राइट इको. इको यूज टू प्रिंट माई स्टेटमेंट. इको डबल कोट्स के अंदर डेट इज over here इतना आया, डेट इज, इको डेट इज, like that. But if I want to display the variable value then I can use that variable with the dollar sign. आपको वो variable कैसे यूज करना है, dollar sign से. So I can write over here dollar date. तो डॉलर डेट का आउटपुट आपको इधर डिस्प्ले हो रहा है. सो एट द एंड व्हाट इज द आउटपुट, डेट इज. ये जो डेट इज लिखा वो ये रहा. एंड जो डॉलर डेट मतलब ये जो डेट कमांड है वो डेट कमांड का आउटपुट कहाँ पे स्टोर हुआ, डेट नाम के वेरिएबल में. पर डेट कमांड मैंने कैसे लिखा, बैक कोट्स में. दैट्स वाई उसका आउटपुट आपका डेट वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ. एंड मैंने इसको इको के साथ डिस्प्ले करवाया. इको डेट इज एंड दिस इज द पर्टिकुलर डेट, लाइक दिस. यस, आप इस तरह से कोई भी कमांड सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो. सो आर यू गेटिंग ऑल ऑफ यू.